In today's session, we will learn Lego Mindstorm Education EV3 software. How we will work on this, what is the purpose of this software, why we use this software, everything. और हम इसको किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे. So before that, you have to open your software and you know very well what are the steps for that. Simply, you will just click on start button and after that you will receive one search box where you can easily search Lego. Then you will receive both software related Lego. It's Lego Digital Designer, which is totally related to your robotic structure design, right? Which is totally related to your robotic structure design. But right now we will discuss programming software. Right now we will discuss programming software, and that is Lego Mindstorm Education EV3 software. You have to remember this point. This is the Lego Mindstorm Education EV3 software. Just click on that, and when you click on this software, you will receive the interface of Lego Mindstorm Education EV3. So this is the interface. And it is a programming software. By the help of this, you can program your robot according to your conditions, according to your situations. Fine. So as you can see here, this is the lobby area. This is what? This is lobby area where you have many options, many folders. And by the help of these folders, you can do multiple tasks. So we will discuss one by one. हम यहाँ पर जो हमारे लॉबी एरिया में कुछ फोल्डर्स गिवन है, इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. आप यहाँ पर देख रहे हैं वी हैव 4 फोल्डर्स. फर्स्ट वन इज मॉडल कोर सेट, अनदर वन इज क्विक स्टार्ट, थर्ड वन इज फाइल, फोर्थ वन इज रोबोट एजुकेटर. दैट मीन्स यहाँ पर आपको कुछ 3 फोल्डर ऑलरेडी बिल्ट फोल्डर्स हैं जिनमें बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है. उसको आप किस तरीके से एक्सेस कर सकते हो, किस तरीके से लर्न कर सकते हो, किस तरीके से अपने यूज में ले सकते हो, वो आज हम डिस्कस करेंगे. एंड दिस इज द फोल्डर फाइल वेयर यू कैन डिजाइन एनी प्रोग्राम, एनी प्रोजेक्ट. So what is the process for that? We will discuss later. But before that, we will discuss first folder, model core set. So I'm just click on that. When I'm clicking on that folder, you will receive one more link, that is model instructions. Model core set means these model will inspire and challenge your robotic skills, right? When I click on this given link, model instruction, I will receive some more folders like Gyro Boy, Color Shorter, Puppy, Robot Arm H25, राइट? तो ये कुछ इस तरीके के आपके पास फोल्डर्स हैं जिसमें आपके प्री बिल्ट प्रोग्राम्स हैं, प्री बिल्ट स्ट्रक्चर्स हैं विद प्रोग्राम्ड. I will show you one by one. So I will go back on my first folder, that is Gyro Boy. What is the role of Gyro Boy? So this is the structure. ये एक स्ट्रक्चर है, रोबोटिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम इसको नाम दे रहे हैं गायरो बॉय. ये किस तरीके का टास्क परफॉर्म करता है वो हम यहाँ पर आपको शो करेंगे. जस्ट क्लिक ऑन दिस ओपन बटन. बाय द हेल्प ऑफ दिस यू कैन लोड द प्रोग्राम which is fixed in this Gyro Boy structure, right? I'm just click on this play button and you will see the result.
आप देख रहे हैं जैसे ही आपके टच सेंसर को कोई ऑब्जेक्ट शो करते हैं वैसे ही इसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो इस तरीके का एक प्रोग्राम कोड किया गया है और इस तरीके की डिजाइनिंग की गई है। आप इसको स्टैंड पर भी प्लेस कर सकते हैं और अगर आप स्टैंड हटाते हैं और आप कोई भी ऑब्जेक्ट इसके टच सेंसर को शो करेंगे यहाँ पर, तो ये मूवमेंट राउंड मूवमेंट लेना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर ये फिक्स किया गया है, राइट। सिमिलरली वी हैव लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट, as you can see here color sorter, I will show you। आप इसको सभी को एक्सप्लोर कर सकते हैं वन बाय वन। आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस ओपन बटन एंड आई विल शो यू द मेन रोल, राइट। दिस इज द स्ट्रक्चर जो भी मैंने आपको शो किया। जैसे ही आप प्ले बटन पर क्लिक करते हैं तो ये आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू आपने जो भी टास्क कंप्लीट किया है वो शो करेगा। वो कलर्स को सेंस करा करके ऑब्जेक्ट को रख रहा है। अब ये कलर्स को शॉर्ट करके अपने बकेट में लेकर के जाएगा। राइट। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई भी टास्क दे दिया जाता है, आप उसको किस तरीके से प्रोग्राम करेंगे वो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू पॉसिबल है। तो यहाँ पर कुछ डेमो पीसेस आपको दिए गए हैं जिनकी हेल्प से आप ये टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो आफ्टर दिस क्लास यू विल एक्सप्लोर ऑल दीज फोल्डर्स। आप ये जितने भी फोल्डर यहाँ पर गिवन है, आफ्टर द क्लास यू विल एक्सप्लोर इट। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट, that is quick start, and just click on this folder and we have lots of options like user guide, programming overview, data logging overview, content editor teacher, and many more, right? So these are the options। अब हम बात करेंगे वन बाय वन। यहाँ पर इनका क्या यूज है, ये क्यों दिया गया है क्विक स्टार्ट। क्विक स्टार्ट हमारी हेल्प करेगा क्विकली चीजों को ओवरव्यू करने में। लाइक वी हैव वन यूजर गाइड in which we have lots of option in detailed version। as you can see here, one PDF is here by the name of user guide। just click on that and you will receive the complete content PDF in which many things are available like sensors, EV3, टायर्स, मोटर्स, इन सभी के बारे में आपको डिटेल्ड ओवरव्यू यहाँ पर मिलेगा। मोटर्स, सेंसर्स, किस तरीके से आप अपने EV3 से कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से मोटर्स और सेंसर्स को कनेक्ट किया जाता है, वो सारा ओवरव्यू यहाँ पर अवेलेबल है। यू कैन सी हियर, राइट। EV3 ब्रिक का कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। किस तरीके से इसके बैटरी के साथ आप वर्क करेंगे, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। इंस्टॉलेशन ऑफ बैटरी, टर्निंग ऑन द EV3 ब्रिक, किस तरीके से EV3 ब्रिक को ऑन किया जाता है, इवन EV3 मोटर्स, EV3 सेंसर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। किस तरीके से सेंसर्स और मोटर्स को कनेक्ट किया जाएगा EV3 से, किस तरीके से आप अपने EV3 को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, वाई केबल, वाई ब्लूटूथ, वाई वाईफाई, एवरीथिंग is available in this PDF। so it is a helping tool which is available in this software। so these are the all points which are in detailed version। so I'm going to close this PDF। yes, and now I will move on to the next folder, that is programming। so I'm just click on that। yes, as you can see here, I'm just play this button, and just click on this play button and you will see what is programming। यहाँ पर आपको overview देखने मिलेगा।
किस तरीके से आप अपने न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं, किस तरीके से उस न्यू प्रोजेक्ट में एक प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, विच इज अवेलेबल इन दिस वीडियो. These are the tools, and by the help of these tools you can easily program anything, right? ये सब हम later on discuss करेंगे, तो you can explore this. Now I will move on to the next programming overview. These are the complex programming, जो अभी यहाँ पर आपको simple programming show की गई, यहाँ पर थोड़ा सा उसको complex version में भी show किया गया है, तो आप इसको धीरे धीरे explore कर सकते हैं. And we have lots of options. You can explore all these folders. Now, next folder is file. We will discuss later, but before that, I will show you the robot educator. What is the role of robot educator folder? So I'm just click on that. Here, I'm just click on basic. This is the basic program, right? ये basic configuration, किस तरीके से आप configuration block को configure कर सकते हो, किस तरीके से आप स्ट्रेट मूव करा सकते हो, लाइक दिस, राइट? ये स्मॉल प्रोग्राम्स से आपको हेल्प मिलेगी. स्मॉल प्रोग्राम आप क्रिएट कर सकते हो. कर्व्ड मूव, किस तरीके से मूवमेंट दे सकते हो अपने रोबोट को, लाइक दिस. किस तरीके से आप टैंक मूव करा सकते हो. तो स्मॉल प्रोग्राम्स का आपको विद वीडियो शो किया गया है. मूव ऑब्जेक्ट, किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हो, लाइक दिस. आप स्टॉप अ लाइन, एट लाइन, स्टॉप लाइन पर आकर के हमारा रोबोट किस तरीके से स्टॉप हो जाएगा, ये आप कर सकते हैं. ये किस तरीके से इनको डिजाइन करना है, दीज आर द प्रोग्रामिंग्स, दीज आर द क्लू, राइट? इफ यू विल मूव ऑन द बियॉन्ड बेसिक, देन यू विल रिसीव हार्डर code, right? Multitasking code, loop, switch. We will discuss one by one each and everything. Multiple switch हम किस तरीके से यूज करते हैं, डेटा वायर्स हम किस तरीके से यूज करते हैं, रैंडम हम किस तरीके से यूज करेंगे, सेंसर ब्लॉक्स को हम किस तरीके से यूज करेंगे. So lots of things are available, and by the help of these you can do anything. So you will explore one by one. Now I will move on to the फाइल फोल्डर. तो इन शॉर्ट मैंने आपको ये जो ओवरव्यू दिया है वो इसीलिए दिया है ताकि आप हर चीज को एक्सप्लोर करें और चीजों का मीनिंग समझने की कोशिश करें. अदरवाइज ये हम वन बाय वन हर एक क्लास में तो डिस्कस करेंगे ही. जैसे आपको बिल्डिंग इंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी अवेलेबल है. ड्राइविंग बेस अगर आपको बनाना है, यानी कि सिंपल एजुकेटर रोबोट जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो अगर आप उसका स्टेप्स ओपन करेंगे, यू विल रिसीव द कंप्लीट PDF. By the help of these steps, you can prepare your educator driving base, right? You can see forward button is here, backward button is here. If you will close this, right, then you will back here. You will open this medium motor driving base if you want to prepare this. तो ये कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, राइट? टच सेंसर का अगर यूज करके आप बनाना चाहते हैं, कलर सेंसर का अगर आप यूज करके बनाना चाहते हैं, दिस इज द कलर सेंसर. तो इट इज टोटली डिपेंड अपॉन यू. यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हेल्पफुल मटेरियल जो आपकी हेल्प करेगा इन लर्निंग, राइट? तो आप वन बाय वन अपने सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर कर सकते हैं. नाउ आई विल मूव ऑन टू द फाइल ऑप्शन, एंड हियर यू विल रिसीव 3 लिंक्स: ओपन प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट एंड ओपन रीसेंट प्रोजेक्ट. अगर आपका ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड यू विल ओपन अ प्रोजेक्ट, राइट? आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ओपन कर सकते हैं बाय नेम. आपको आपकी लोकेशन पर पहुंचा देगा जहां भी आपकी फाइल सेव होगी. बट अभी हमने कोई प्रोजेक्ट इसमें क्रिएट नहीं करा है, तो हम ओपन नहीं कर सकते हैं. वी विल ओपन लेटर. नाउ you will receive your new project link. When you click on that, you will create a new project.
एक प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, बट प्रोजेक्ट के अंदर वेरियस प्रोग्राम्स हो सकते हैं, राइट? सो जस्ट क्लिक ऑन दैट प्रोग्राम ऑप्शन and create a new program. Just click on open. When you click on that, you will receive a project, and under this project you will receive a program. When you double click on this program, you will change the name. I will write here my first program, right? My first program. So this is my first program. If I want to create one more program, then I will add by the help of this plus button, new program. I will type here my second program. मैं इनमें कोडिंग क्रिएट कर सकती हूँ, राइट? लेकिन किस तरीके से मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकती हूँ अंडर अ वन प्रोजेक्ट, ये मैं आपको शो कर रही हूँ, राइट? दिस इज माय सेकंड प्रोग्राम. तो एक ही प्रोजेक्ट के अंदर मेरे दो प्रोग्राम्स हैं, माय फर्स्ट प्रोग्राम एंड माय सेकंड प्रोग्राम. हो सकता है मैंने फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट किया हो कि मेरा रोबोट स्ट्रेट मूव करे, हो सकता है मैंने सेकंड प्रोग्राम क्रिएट किया हो कि मेरा रोबोट रोटेशंस लगाने स्टार्ट कर दे. तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं जो मेरे एक ही प्रोजेक्ट के अंदर हैं. रन EV3 मैं बना सकती हूँ कि मैंने अपने EV3 को रन किया है या रोबोट को रन किया, रन रोबोट एक प्रोजेक्ट में बना रही हूँ, राइट? तो अगर मैं इस प्रोजेक्ट को सेव करना चाहती हूँ, देन आई विल गो ऑन फाइल ऑप्शन एंड आई विल just click on save project, and now I will type here, and my location is Lego Creation Mindstorm EV3 projects, but I want to save in documents. ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में मैं इसको सेव कर रही हूँ और इसका नेम होगा रन रोबोट. Right, as you can see here, this is your project run robot, and under this project we have two programs, my first program and my second program. I'm just close this complete EV3 software, and now I will open again. मैं अब आपको शो करूंगी कि आप अपना सेव्ड प्रोजेक्ट किस तरीके से ओपन करते हैं. Lego Mindstorm एजुकेशन EV3 सॉफ्टवेयर को हमने ओपन किया. राइट, और अभी हम यहां पर करेंगे फाइल पर, फाइल ओपन किया फोल्डर, एंड अंडर दिस फाइल वी विल क्लिक ऑन ओपन फोल्डर and just click on this folder, and just after that you have to click on this open button and you will receive the location. but हमने उसको कहां पर सेव किया था? डॉक्यूमेंट्स में ही सेव किया था, but my name is run robot. Yes, here it is, run robot. When and just click on that, and after that I will click on open button, then you will receive the same project which you have already created. Yes, here it is. As you can see, हमने यहाँ पर दो projects को create किया था. So this is the way you can open a fresh project and open a saved project. How you can create programs under the project, ये हमने अभी discuss किया. I hope it is clear.